Hello student, Jai Swami Narayan. Today we continue with the chapter number 6 or unit number 6 specification. Okay. जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सेकेंड क्लास बिल्डिंग हमने आगे क्या पढ़ा था. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी, पर्पस ऑफ स्पेसिफिकेशन. ओके. देन जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए फर्स्ट क्लास बिल्डिंग. अभी हम क्या पढ़ेंगे? जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सेकेंड क्लास बिल्डिंग. The specification of second class buildings are scaled down in place of first class brickwork and second class brickwork is used. इन प्लेस ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फर्स्ट जो स्पेसिफिकेशन था उसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हम करते हैं और इसमें क्या करता है? सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क इस करता है. ओके. तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क अच्छा है सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क से. ओके. इन प्लेस ऑफ फ्लोरिंग विथ री स्पेसिफिकेशन it is provided with the IPS flooring, ordinary plastering on the wall, साल wood for the doors and windows than teak wood. तो हम डोर्स और विंडोज में टीक वुड की जगह पे क्या यूज करते हैं? साल वुड यूज करते हैं. देन ऑर्डिनरी प्लास्टरिंग यूज करते हैं और फ्लोरिंग की जगह पे हम क्या करते हैं? IPS फ्लोरिंग यूज करते हैं. Foundation and plinth. The foundation and plinth of first class brickwork with lime mortar over the lime concrete. The DPC shall be 2 centimeters thick cement mortar mixed with suitable waterproofing compound as specified. Then superstructure. The superstructure shall be second class brickwork in lime mortar. Okay. Then lintels over the doors and windows shall be reinforced brickwork. Okay. Then roofing. The roof shall be RB slab with 7.5 centimeter lime concrete terracing above veranda. Roof may be of EC sheets or Allahabad tiles. Okay. तो हम roof shall be RB slab with 7.5 centimeter lime concrete terracing above veranda. रूफ में बी ऑफ AC शीट और अलाहाबाद. वरंडा रूफ है वहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है? AC शीट और अलाहाबाद टाइल्स से वहाँ पे हम रूफिंग करते हैं. देन फ्लोरिंग. द फ्लोरिंग शैल बी 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट अबाउ 7.5 सेंटीमीटर लाइम कॉन्क्रीट. देन फिनिशिंग में क्या आएगा? द इनसाइड एंड आउटसाइड वॉल शैल बी 12 mm thick cement mortar plastered. Inside shall be white wash 3 coats and outside color wash 2 coats over 1 coat of white wash. Doors and windows. The chaukhut shall be of RCC or well seasoned of sal wood. Shutters of 4 centimeter thick sesame wood and devdar wood. Iron fitting shall be provided. Doors and windows shall be painted 2 coats over 1 coat of priming. Then principles of writing the specification. While writing the specification, the following principles shall be adopted. First one is subject matter. The subject matter of specification should be related to the information required after the contract is given to the particular contractor. Okay, तो जो भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर है तो वो उसको जो भी हमारी आइटम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके. ओके. सब्जेक्ट के रिलेटेड और आइटम के रिलेटेड वैसा होना चाहिए. ओके. ऐसा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए. द क्वालिटी एंड द साइज ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू डू एन आइटम ऑफ वर्क. क्वालिटी एंड साइज ऑफ द मटेरियल जो भी होता है कोई भी आइटम करने के लिए तो वो फुल्ली अंदर डिस्क्राइब होना चाहिए. द क्वालिटी एंड द साइज ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू डू एन आइटम ऑफ वर्क शैल बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड. द प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सिंग शैल बी क्लियरली डिस्क्राइब.
जो भी प्रपोर्शन है, वो मिक्सिंग का जो भी प्रपोर्शन है, फॉर एग्जांपल आरसीसी है, पीसीसी है, बीबीसीसी है, बीबीएलसी है, तो प्रपोर्शन क्या होना चाहिए वो क्लियरली डिस्क्राइब्ड होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज ग्रामर. While writing the specification, an endeavor shall be made to express the requirements of the specification clearly and in concise form, avoiding the repetition and unusual words. The style of tense shall remain same throughout, and the sentences shall be short, simple, and concise. As the specification are the legal documents, the terms such as suitable. The terms such as suitable. This document is legal. Specification document is legal document. तो उसमें जो भी लिखा है तो वो प्रॉपरली एक ही ग्रामर में होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और सामने वाले को समझ में आना चाहिए. ओके, तो ग्रामर इस तरह से यूज हुआ होना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज मीनिंग. While drawing specifications, only suitable words with the desired meaning should be used. Okay, words having more than one meaning shall be avoided. तो स्पेसिफिकेशन में क्या है कि जो भी आप स्पेसिफिकेशन लिखते हो तो कई वर्ड्स ऐसे यूज करो कि जिसका दो मीनिंग ना हो, एक ही मीनिंग हो. तो ऐसे वर्ड यूज करो कि जिसका मीनिंग एक ही हो और सामने वाले को समझ में आए. देन नेक्स्ट वन इज एब्रीवेशंस. Only these abbreviations which are well known in the building industry shall be used, okay, without giving definitions. फॉर एग्जाम्पल आरसीसी है तो आरसीसी का मतलब क्या है, तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट. डीपीसी का मतलब क्या है, डैम प्रूफ कोर्स. सीआई का मतलब क्या है, कास्ट आयरन. तो एब्रीवेशंस ऐसे यूज करो तो सबको पता चले कि इसका मतलब ये है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है. देन नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी. The information given in the specification should be complete and correct. Otherwise, contractor may claim for any extra cost due to the damage occurred to him by misleading the information supplied by the owner. That means आपके पास स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा सकता है कि भाई ये एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगा सकता है बिकॉज उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है. ओके, इसलिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगा सकता है. तो स्पेसिफिकेशन जो भी है उसमें इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर को समझ में आए. ओके, और वो अपना प्रॉपरली काम कर सके. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. Fairness. The specification should be fair and they should not frame in such a way so as to throw all the risk on the shoulders of the contractor. Also, all likely difficulties, hazards, etc. should be specified in the specification so as to give a clear picture of the work to the contractor. तो स्पेसिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्टली सब कॉन्ट्रैक्टर पे ना आए. ओके, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन हमने ऐसा दिया है तो कॉन्ट्रैक्टर को सोचना पड़ रहा है कि भाई जो भी काम करना है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं कि इस तरीके से करना है, वो खुद ही डिसाइड करना पड़े, ऐसा नहीं. वो स्पेसिफिकेशन में सब प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए जिसकी वजह से उसको डिफिकल्टी नहीं आए कि ये जो भी आइटम है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, मैं कैसे करूँ. ओके, that is called fairness. Then practicability. That means the specification should be framed while keeping in view the practical limitations of the materials and workmanship. Also, the specification should specify the use of the commercial sizes and pattern of the materials. It becomes expensive to manufacture the special sizes and it also takes more time to prepare such sizes. That means specification should be framed with keeping in view the practical limitation of the materials and workmanship. स्पेसिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि इसके लिए कोई भी मटेरियल जो भी यूज़ करते हैं और जो भी व्यक्ति काम करने वाला है,
तो वो ऐसा मुझे अवेलेबल होना चाहिए कि मटेरियल मुझे इजीली मिल सके, जो बाज़ार में मिलता है ओके इजीली अवेलेबल होता है, और जो भी ये कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाला है वो भी इजीली मिल सके, जिससे प्रॉपर तरीके से मैं काम करवा सकूं ओके। नहीं तो क्या होगा, आपने वर्कमैनशिप यानी काम करने का तरीका ऐसा रखा तो मुझे ऐसा एक्सपर्ट ढूंढने जाना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा ओके। Then clues of the specification. As far as possible, the clues shall be arranged in the order in which work shall be carried out. This does not mean to follow the works according to the order of the clues, but it facilitates the reference. Okay. Then workmanships. The complete description of the workmanship, the method of mixing to the proportion, the method of laying, the preparation of the base, compacting, finishing, curing, etc. specifically applicable to the item of the work shall be clearly stated in the different clues. That means जो भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किस तरह से काम करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कितना प्रोपोर्शन रखना है, मेथड उसको लेइंग दैट मीन्स उसको कंस्ट्रक्ट करने की मेथड कौन सी है, वो बेस का प्रिपरेशन कैसे करना है, कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग, क्योरिंग, दैट मीन्स जो पानी हम डालते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्योरिंग ओके। तो वो सब अंदर स्पेसिफिकेशन में लिखा होना चाहिए। The next one is tools and plans. The tools and plans to be engaged to carry out the work shall be described. The method of operation and by whom to be supplied shall be clearly stated. The tools and plans कौन से मुझे ये वर्क में एंगेज रखना है वो सब पता हो, ऐसे स्पेसिफिकेशन लिखो जिससे सामने वाले को या कॉन्ट्रैक्टर को पता चले कि भाई इसके लिए ये सब आइटम्स मुझे चाहिए, ये प्लांट चाहिए या ये इक्विपमेंट चाहिए। तो उस ओके तो द मेथड ऑफ ऑपरेशन एंड बाय होम टू बी सप्लाइड शेड बी क्लियरली स्टेटेड। दैट मीन्स हम जो भी काम जिस कॉन्ट्रैक्टर को देने वाला है तो उसको क्लियरली पता होना चाहिए कि इसके लिए ये चीज़ चाहिए, ये मटेरियल चाहिए ओके। दैट इज कॉल्ड टूल्स एंड प्लांट्स। Then next one is detailed specification of the various items. तो उसमें फर्स्ट वन अर्थवर्क इन द एक्सकेवेशन इन द फाउंडेशन। तो अर्थवर्क करना है, एक्सकेवेशन करना है, किसके लिए करना है, तो फाउंडेशन के लिए। तो उसके लिए अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज एक्सकेवेशन। बिफोर द अर्थवर्क इज स्टार्टेड, before the earthwork is started, the whole area where the work is to be done shall be cleared of grass, roots of trees and other organic matters. जहाँ पे भी हम अर्थवर्क करना चाह रहे हैं वहाँ पे ग्रास, रूट्स ऑफ ट्रीज, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है उसको पहले क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है ओके। देन द साइड्स ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंचेस शैल बी ट्रूली वर्टिकल। जो भी फाउंडेशन ट्रेंच है दैट मीन्स जो भी खड्डा है उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। एंड द बॉटम शैल बी परफेक्टली लेवल। जो भी बॉटम है एक्सकेवेशन फाउंडेशन में जो भी ट्रेंच है, फाउंडेशन ट्रेंच है, उसकी साइड्स वर्टिकल होनी चाहिए और बॉटम क्या होना चाहिए, परफेक्टली लेवल होना चाहिए। The excavation shall be carried out exactly in accordance with the dimensions shown on the drawings or such other dimensions as the engineer in charge may decide. जो भी ड्राइंग्स में डायमेंशन दिया होता है वो उस तरह से डायमेंशन होना चाहिए ओके। नेक्स्ट, if the soil is not good and does not permit the vertical sides, the sides should be sloped back or protected with the timber shoring. For example, कई जगह पे सॉइल ऐसी है तो आपको वर्टिकल साइड्स
फाउंडेशन ट्रेंच में नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिम्पर शोरिंग का यूज करके वो साइड्स को, ट्रेंच की साइड्स को वर्टिकल करना पड़ेगा, फिर बाद में ही आप फाउंडेशन कर सकते हो। सॉफ्ट और डिफेक्टिव spots shall be dug and removed, filled with concrete or with stabilized soil. For example, soft और defective spots, for example soil जो भी होती है उसमें different layers होता है। For example कोई defective part है और for example खड्डा है और फॉर एग्जांपल कोई मिट्टी ऐसी है बहुत सॉफ्ट है तो उसको क्या है, रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करके फिर वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, कंक्रीट और विथ स्टेबलाइज सॉइल, वहाँ पे सॉइल डालना पड़ेगा, स्टेबलाइज। ओके, इफ द रॉक्स और द बोल्डर्स आर फाउंड during the excavation, these should be removed and the bed of the trenches shall be leveled and made hard by consolidating the earth. That means for example कोई हार्ड रॉक या बोल्डर्स वगैरह आपको कुछ दिखता है तो वो निकाल के वहाँ पे क्या करना पड़ता है, लेवल करना पड़ेगा और वहाँ पे क्या है, उसको हार्ड करना पड़ेगा बाय कंसोलिडेटिंग द सॉइल। ओके, कंसोलिडेटिंग द अर्थ है तो उसको टैंपिंग रॉड और जो भी उसको टैंप करके लेवल करना पड़ेगा अर्थ को। ओके, बिकॉज आपने वहाँ से पत्थर निकाला या रॉक निकाला है तो वहाँ पे खड्डा हो जाएगा तो उसको फिलअप करके लेवल करना पड़ेगा। The bed of the trench shall be lightly watered and well rammed. The bed of the trench should be lightly watered. That means आपको थोड़ा वहाँ पे पानी डालना है और well rammed that means वहाँ पे रैमिंग करना है जिसकी वजह से जो भी सॉइल का लेयर है उसमें पोर्स वगैरह है तो वो कम हो जाए। ओके, हम रैमिंग करते हैं दैट मीन्स कोई भी मिट्टी है उसको रैम करते हैं, दबाते हैं तो वहाँ पे उसमें पोर्स कम हो जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं। इट इज विदाउट वॉइड्स। ओके, तो भी छोटा छोटा पोर्स तो वहाँ पे होते ही है, पर ये रैमिंग और कंसोलिडेटिंग और तो उसका मीनिंग भी वही है कि रैमिंग करके आप जो भी सॉइल है उसको हार्ड बना दो। ओके, उसमें से पोर्स जो भी है दो सॉइल पार्टिकल्स है उसके बीच में जो भी वॉइड्स होता है वो कम कर दो या घटा दो रैमिंग करके। Okay, then the foundation concrete shall not be laid before the inspection and approval of the trench by the engineer in charge. फाउंडेशन कंक्रीट जब भी इंजीनियर इंचार्ज होता है वो अप्रूवल देता है कि भाई चलो ये आपका एक्सकेवेशन और फाउंडेशन ट्रेंच क्लियर है तभी आप वहाँ पे फाउंडेशन कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, उसके परमिशन के बगैर आप वहाँ पे फाउंडेशन कंक्रीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। Then next, access in the excavation. Access digging if done by mistake shall be filled with the cement concrete at the expense of the contractor. No extra payment shall be made for this. For example, जो भी digging है, जो भी हमें foundation trench dig करना था उसकी जगह पे हमने ज़्यादा dig कर लिया है तो वहाँ पे उसको सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसका कोई एक्सपेंस मिलेगा नहीं कॉन्ट्रैक्टर को, उसका कोई पेमेंट नहीं होगा। ओके, उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा। ओके, वाटर इन फाउंडेशन, वाटर इफ एनी accumulates in the trench shall be bailed or pumped out without any extra payment and necessary precautions should be taken to prevent the surface water to enter into the trench. ओके, आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप फाउंडेशन ट्रेंच खड्डा खोद रहे हो वहाँ पे जो भी पानी है तो उसको पहले तो निकाल देना है और कोई एक्स्ट्रा पानी बाहर से नहीं आए। ओके, जो भी सरफेस वाटर है वो ट्रेंच में ना जाए वो भी हमें ध्यान रखना है और जो भी पानी है वो निकालना है जब भी हम फाउंडेशन ट्रेंच करते हैं तभी। ओके, देन फाइंड्स, any treasures and valuable or material found during the excavation shall be property of the government. The stacking of the excavated earth.
No material excavated from the foundation trench shall be placed nearer than 1 meter to the outer edge of the excavation. That means जो भी आप मिट्टी निकाल रहे हो वहाँ से 1 मीटर तक आप जो भी मिट्टी है वहाँ पे रख सकते हो. Okay, after the concrete has been laid, masonry has been constructed, the remaining portion of the trenches shall be filled up with the earth in layers of 15 centimeter and water and well rammed, and the surplus excavated material shall be spread out uniformly up to a lead of 30 मीटर. इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने एक्सकेवेशन किया, एक्सकेवेशन के बाद में फाउंडेशन ट्रेंच जो भी आपने खड्डा खोदा एक्सकेवेशन करने के लिए, ओके, वो सब कंस्ट्रक्शन अप टू ग्राउंड लेवल तक फिनिश हो जाता है. तो बाकी की जो रिमेनिंग जगह है, रिमेनिंग पोर्शन है, वहाँ पे जो भी आपने मिट्टी निकाली है वो वापस उसको वहाँ पे फिल करना है. देन वाटर करना है. दैट मीन्स वहाँ पे पानी स्प्रिंकल करना है और उसको रैमिंग करना है. ओके, the surplus excavated material shall be spread out uniformly up to the lead of 30 meter. Okay. और किस लेयर्स में करना है? 50 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर तक लेयर किया आपने. जो भी एक्स्ट्रा आजू बाजू पोर्शन है एक्सकेवेशन फाउंडेशन ट्रेंच में, जो भी एक्स्ट्रा आजू बाजू लेयर्स है उसमें आपने क्या 15 सेंटीमीटर तक मिट्टी डाली, वाटर किया, फिर रैमिन किया, अगेन 50 सेंटीमीटर तक मिट्टी डाली, वाटर किया, रैमिन किया. तो वैसे आपको जो बाकी का पोर्शन है आफ्टर एक्सकेवेशन वो फिलअप करना है below ground level. Then miscellaneous existing service like pipes, cables, sewers, etc. found in the trenches shall be temporarily stored and saved from any damage. The cost of all the materials and labors required for fencing in and protection against the risk of the accidents due to open excavation shall be provided. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जिस्टिंग सर्विसेज लाइक पाइप्स, जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो, एक्सकेवेशन ट्रेंच और फाउंडेशन ट्रेंच बनाते हो, तो पाइप्स, केबल, सीवर्स वगैरह आपको दिखाई देता है, तो उसको सेफ रखना चाहिए. उसको कुछ कोई डैमेज नहीं होना चाहिए. Okay, the cost of all the materials and labor required for the fencing in and protection against the risks of the accidents due to open excavation shall be provided. That means आपको मटेरियल्स और जो भी लेबर्स, जो भी आपको नीचे जो भी फाउंडेशन ट्रेंच किया उसमें पाइप्स, केबल्स, सीवर्स के लिए प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट कर सके. दैट मीन्स उसके लिए जो भी मटेरियल्स और लेबर्स चाहिए, जो भी नीचे ऑलरेडी पाइप्स वगैरह है तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मटेरियल्स और लेबर चाहिए. तो उसका भी हमें ध्यान रखना, कितना लेबर्स और मटेरियल्स चाहिए. ओके, in and protection against the risk of the accidents due to the open excavation shall be provided. Okay, उसका भी कॉस्ट गिनना चाहिए कि जो भी ऑलरेडी जो भी पाइप्स वगैरह है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, और उसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है वो भी ध्यान में रखना चाहिए. ओके, वो भी प्रोवाइड करना चाहिए. ओके, the next one is measurement and rate. The measurement shall be taken in cubic meter, measuring length, width of concrete, depth of foundation from the ground level. Okay, rate shall be for complete work for 30 centimeter lead and 1.5 meter lift. Lift का मतलब क्या है कि height 1.5 मीटर और lead that means what, कि जो भी हमारी लेंथ है तो 30 सेंटीमीटर 30 मीटर लीड और 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर लिफ्ट. लीड का मतलब क्या है कि जो भी फॉर एग्जांपल आप लॉन्गिट्यूडनली कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 30 मीटर लीड आएगा. ओके, दैट इज नॉट 13 सेंटीमीटर. 30 मीटर लीड एंड 1.5 मीटर लिफ्ट.
दैट मीन्स 30 मीटर तक आप जो भी लॉन्गिट्यूडनली कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 30 मीटर तक अलग रेट रहेगा, वापस 30 मीटर तक अलग रेट रहेगा. ओके, including all tools and plants required for the completion of the work. For extra lead of 30 meter and every lift of 1.5 meter, separate extra rate is provided. Thank you.